الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 3 ذوالقعدہ 1441 ہجری جمعرات کا مبارک دن 25 جون 2020 تھرسڈے یوم الخمیس بزرگوں کے واقعات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دھیان سے سماعت فرمائیں. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ سمجھ لیجئے, جو سنتے ہیں نا, یہ جو روزانہ جو میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں, اس کو معمولی مت سمجھیے. جو سننے والے ہیں اسے معمولی مت سمجھیے. یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں شیطانوں کو ہرانے کے بعد پھر آپ یہ سنتے ہوں گے. یہ سن لینا, آج کے دور میں یوٹیوب سے یہ چیزیں سن لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے میرے آڈیوز ہیں اس پر ویوز کتنے آتے ہیں, 4 5 پھر بڑھتے بڑھتے 11 12 20 تک پہنچتے ہیں. کوئی ایک آدھے 30 تک بھی چلی گئی. یہ ویوز ہیں. کل میں نے تفسیر کے سلسلے کا 150واں جو تھا آڈیو اپلوڈ کیا تھا. کل فجر کے بعد یعنی 7 بجے غالباً کیا ہوگا. کل سے لے کر اب تک یعنی 24 گھنٹے ہونے آئے, اس پر کتنے ویوز ہیں آپ نے سوچا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے. آج کے دن تک 24 گھنٹوں میں تفسیر قرآن پر ویوز صرف ایک, وہ بھی یعنی شاید غالباً ابھی کسی نے سنا ہے. میں کل رات تک دیکھتا رہا, زیرو ہی تھا. یعنی آج ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے تو کوئی دینی باتوں کی طرف مائل ہوتا نہیں. یوٹیوب میں جا کر گھنٹوں گزاریں گے پتہ ہے, لیکن کہاں سانگز, گانے, فلمیں, ٹک ٹاک کے ویڈیوز, فحاشی کے جو مناظر ہیں وہ, کچھ تھوڑے اوپر آئے تو پھر وہ خبریں وغیرہ یہاں وہاں کی. اچھا ویوز میں پھر اتنے جو دیکھتے ہیں وہ پھر وہ ویوز میں بھی مقابلے کرتا ہے. اب ان کا کوئی فیوریٹ ہے, کوئی فیوریٹ کا کسی کا گانا ہے تو پھر اس پر مقابلے ہوتے ہیں کہ اس پر اتنے بلین ویوز ہیں, ارے اس سے بھی زیادہ آگے ہے یہ, اس کے اتنے. آڈیو میں دل نہیں لگتا, ویڈیوز چاہیے. ویڈیو بنا بھی لوں, چلیے میں بنا بھی لیتا ہوں, پر اس کی گارنٹی کیا ہے کہ ویڈیو بنانے کے بعد بھی لوگ سن لیں گے؟ میں تو کسی لائف ان کے ویڈیوز آئے تو سمجھ میں بھی آتا ہے میرا سننے والے کون ہے جو میں ویڈیوز بناؤں. پھر وہ اختلافی مسائل, پھر تو اس لیے بس آڈیو سے کام چلا. پھر وہ ویڈیو بنانے میں کافی, یعنی بس ایک بات عرض کرنا ہے کہ ہماری قوم کا ذہن اتنا بدل چکا ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے. اب ایسے ماحول میں اگر آپ لوگ ایسے ماحول میں کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے دین کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے, دین کی باتوں سے کوئی دلچسپی آج کسی کو نہیں. اب اس ایسے گندے اور دین سے دوری والے ماحول میں جو 10 لوگ 5 لوگ
20-25 लोग जो सुन लेते हैं, मैं समझता हूँ करोड़ों शैतानों को हराने के बाद ये सुनते होंगे। यूट्यूब पर हजारों करोड़ों गाने वगैरह भरे होंगे, अरबों खरबों भरे होंगे, फहाशी के वीडियोस अलग भरे होंगे। उन सब के बीच में से आप इस चीज़ को चुन कर, इसे देखकर, यानी यूट्यूब पर जाकर भी जब आप ये सुन रहे हो तो फिर वाकई आपको सलाम है, सलाम है आपको। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम इतने बड़े दलदल में से हम ये चीज़ सुन रहे हैं, गुनाहों वाली चीज़ों से बचकर अल्लाह वालों की बातें सुन रहे हैं, तफसीर कुरान सुन रहे हैं, फिर ये वाकई बहुत बड़ा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुनते हैं उनको मेरा सलाम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए, और हो सके तो इसे फैलाने की कोशिश कीजिए, आप लोगों के लिए भी सवाब जारिया बनता रहेगा। जितने सुनेंगे आप लोगों को भी सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। काफ़ी लंबी तमहीद मैंने कर दी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलिए अपने सिलसिले की तरफ चलते हैं। एक वाक़या बड़ा प्यारा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम सहाबा किराम का मकाम ही अलग था, पर यहाँ पर ये जो हस्तियाँ थीं, बुज़ुर्ग बड़े जो थे अकाबिरीन सहाबा में से, इन लोगों के हाल बहुत ऊंचे थे, बहुत अज़मत वाले हालात थे इनके। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका हाल ये था, और भी वाक़यात होंगे। यहाँ पर ये बात है कि ये रोज़ाना मदीनतुल मुनव्वरा की अतराफ में, यानी बहुत समझ लीजिए कोने में एकदम कहीं दूर दराज में एक बूढ़ी औरत का मकान था, और साथ में अंधी भी थी, अंधी भी थी, बूढ़ी भी थी, घर में कोई था भी नहीं, अकेली रहती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ था, देखा ऐसे हाल में, तो आपने अपना मामूल ये बना लिया, रोज़ाना रात को वहाँ जाते, उसका काम जो घर का होता वो कर दिया करते, यानी कि पानी भर दिया, उसके लिए खाना वगैरह बना करके थोड़ा रख देते थे, उसके बर्तन वगैरह सही करके थोड़ा बहुत, यानी जो काम जो उसका जो अंधी होने के बिना पर नहीं कर सकती थी वो काम करके आप वहाँ से चले जाते थे। रोज़ाना आप इस तरीके से करते थे, रात में जाकर छुप छुप, ये दिखाकर नहीं, ये इन लोगों का तो इखलास तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छुप छुपा कर आप सब किसी को बताए बगैर ये काम किया करते थे। एक दिन आप वहाँ गए तो देखा कि काम पहले से हो चुका है, सब कुछ वैसे ही जो आप करना चाहते थे सब कुछ काम किया जा चुका है। आपने कहा अरे ये क्या हुआ, मेरे आने से पहले कोई करके चला गया। आप वहाँ से लौट आए, दूसरे दिन गए तो फिर वही हाल, फिर से पहले से काम हो चुका है, दूसरी रात में भी। अब आपने सोचा कि अब तो मैं इससे पहले से आकर देखूंगा कि करता कौन है, मेरे से पहले कौन आ जाता है, और इस बूढ़ी औरत का, इस अंधी माँ जी का काम कौन करके चला जाता है। तो उस रात आप पहले ही पहुंच गए, एक गोशे में, एक जगह पर कोने में छुप गए कि आखिर है कौन। देखा तो एक शख्स आया, उसके चेहरे पर नकाब जैसा लपेटा हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था, और वो आकर सारा कामकाज करने लगा। और सब कुछ काम करने के बाद जब वो घर से वापस लौटने लगा तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने आ गए और उसे रोककर, कौन हो भाई, तुम कौन हो कि ये नेक काम मैं करने की सादत हासिल कर रहा था, तुम मुझसे पहले आकर करने लग गए, आखिर हो कौन। अब उस नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया है, अपना चेहरा जब दिखाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मुझे पता था तुम ही होगे, मुझे पता था कि तुम ही होगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो नकाब पोश, वो उस बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, उस बूढ़ी औरत के घर के काम काज करने वाला और कोई नहीं था, बल्कि वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। ये खलीफा बनने के बाद का वाक़या, खलीफा बनने के बाद ये हाल था। सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं, और तो पूरा घूम घूम करके, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं मेरी हुकूमत में। हुकूमत क्या समझते थे वो लोग, तो खिदमत समझ, वो लोग, उन्हें जो खिदमत, सिर्फ उनके अंदर जज्बा, दीन का जज्बा था, अपनी
बैंक बैलेंस वगैरह करने का उनके पास वो सब जहन नहीं थे, ये आज वाले नहीं थे। कोई करके तो दिखा दे, समझ ले कोई। अरे काउंसलर तक, म्यूनसिपल काउंसलर तक को पता नहीं होता कि उसके एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर क्या परेशानी है। जाके देखते झांकते भी नहीं, 5 साल खाली सीट मिल गई, बस खत्म। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने जो सिस्टम चल रहा है हमारे इंडिया में। ये यानी एक बार सीट हाथ आ गई तो फिर तो अगर खुद क्या जाएंगे देखने, कोई अगर जाकर तकलीफ बता भी दे, पहले तो पहुंच ही नहीं पाते भाई साहब। पहले तो कोई पहुंचना ही जुए शीर यानी दूध की नहर लाने के बराबर है। घंटों लाइनों में खड़े रहिए, अभी मंत्री साहब, अभी काउंसलर साहब बिजी हैं, मीटिंग में हैं, या खड़े रहिए, दरबार लगा हुआ है, बाहर लाइन लगी हुई है। फिर मौका मिल गया तो पहुंच गए, सुना तो सुना, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने दरखास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी, लिखकर सब कुछ हो गया। वो हफ्तों चलेंगे, महीनों चलेंगे फाइल में। कोई एक आध होगा काउंसलर, कोई एक आध होगा एमएलए सही जो काम वगैरह लोगों के करके देता होगा, वरना तो गरीबों की तो पहुंच ही नहीं हो पाती। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे सब पहुंच जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बराबर सब कुछ होता है। तो ये अच्छा, ये इसमें हिंदू मुस्लिम सबका वही हाल है। मैं ज़्यादातर मुसलमानों से मुखातिब हूँ। काश वो तो वहाँ तक तो पहुँचना नहीं, नामुमकिन सी बात है, उन तक तो पहुँचेंगी भी नहीं ये बातें। बोल कर अपने दिल की भड़ास निकाल लें, सुन लिए तो सुबहान अल्लाह, मेरे लिए सवाब जारिया बन जाएगा। तो कहने की बात यह है कि ये यहाँ पर देखिए, इनका किरदार, इनका अमल के खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद भी ये हाल है आजिज़ी का कि किसी और को हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि खुद जाकर अपनी रियाया की काम को करके आ रहे हैं। ये हदीस पाक है कि हर एक से उसकी रियाया के बारे में, उसके जो नीचे जो लोग होते हैं ना, जिनके जो उसके ताबेदार, उनके बारे में सवाल होगा। तो ये डर था उनको, क्या आखिरत में अगर मुझसे पूछ लिया गया कि एक बूढ़ी औरत रहती थी, अंधी रहती थी, उसका कोई पुरसान हाल नहीं था, तूने उसके लिए क्या किया, ये डर था उन लोगों, एक एक चीज़ का। और ये सीखा कहाँ से था? सरकार की बारगाह में थे, सरकार से सब कुछ फैज़ मिलता रहा, तो इतने आला और ऊंचे मकाम पर थे। तो एक खलीफतुल मुस्लिमीन होकर एक बूढ़ी औरत का काम कर देना, ये कोई और बात नहीं है, ये आसान चीज़ नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही मकाम है। हज़रत उमर कर रहे हैं, सहाबी, एक सहाबी के तौर पर, और यहाँ पर आप तो ये खलीफा भी हैं, सहाबी भी, अब खलीफा भी हैं। इज्जत भी है, अदब भी है, एहतराम भी है, मर्तबा भी है। उसके बावजूद आकर इनकी सारी आजिज़ी कि खुद आकर घर का काम करके जा रहे हैं। ये वाक़या अल मुख्तार में मनाक़िबिल अख़ियार में भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सी किताबों में ये वाक़या है, सच्ची हिकायत में भी लिखा हुआ है। तो ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, बड़ी प्यारी। ये खिलाफत राशिदा जो थी, ऐसी खिलाफत वाक़या बहुत ही, तो बहुत मुख्तसर, ये कुछ सफ़हात में ख़त्म हुआ है इन किताबों में, वरना इन लोगों की सीरतों पर किताबें लिखी हुई हैं। अब उतना तफसील से तो मैं यहाँ जा नहीं सकता, जो लिखा है कुछ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसके बाद के और भी कुछ वाक़यात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आगे के ऑडियो को भी सुनते रहें और अमल की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ जो खलीफा बन गया वही नहीं, ये सब पर ज़रूरी है कि अपने अपने जो आसपास में जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, कमज़ोरों को ऊपर लाने की कोशिश करना है हमें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल करते रहें, सबकी मदद करें। देखिए हमारे खलीफा का ये हाल था, तो हमें भी कुछ तो कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता।